Good morning, students. We are proceeding the chapter light, that is chapter number 10. Yesterday we have discussed the reflection by concave mirror. Now today we are going to discuss reflection by convex mirror, right? So there is a convex mirror, and this is the pole of the convex mirror. This is focal point, and there is a center of curvature, right? Now there are two cases. The object may be at infinity or object may be at finite distance from the pole, right? So there are only two cases. In the first case, we are assuming that object is at infinity, right? Now see this convex mirror, its polish is towards the focal point or towards the center of curvature, right? It means its reflecting surface is away from the focal point, right? Now the rays coming from the object which is at infinity, these rays are parallel to the principal axis. You know that the line joining the pole, focal point, center of curvature, that line is known as principal axis, right? When these rays falls on the reflecting surface of the convex mirror, then what happens? These rays reflects back in the same medium. But observer observe that these rays are coming from the focal point, right? So these dotted lines are the virtual path of the light rays, right? If these reflected rays are assumed to be or appear to be focused at focal point, it means the image will form at the focal point. Now the size of the image is point. Second thing, the image is virtual. Third thing, the image is erect. If the image is virtual, automatically it will be erect, right? अब second case पे चलते हैं. Now we are moving this object towards the pole. What happened? Now in this case, the object between infinity and pole, it means it is at finite distance from the pole. Now this is principal axis, focal point, this is center of curvature, right? Object is here at finite distance from pole. What will happen? First ray coming parallel to the principal axis, reflected in the same medium, but it appears to coming from the focal point, right? Second ray, which is going towards the center of curvature, but it cannot, it will reflect back in the same medium and follow the same path, right? Same path in backward direction. Now observer observes that this ray is coming from the center of curvature. Now these two reflected rays are meeting at this point. It means head of the image will appear at this point. तो image कैसी बन जाएगी? इस तरीके से. हेड यहाँ है, टेल यहाँ है, प्रिंसिपल एक्सिस. अब अगर आप इस इमेज को देखें तो ये इमेज है इरेक्ट, सीधी इमेज. दूसरा, ये जो इमेज है ये वर्चुअल है, क्योंकि ये डॉटेड लाइन से मिलके बन रही है. इसका मतलब अगर मैं स्क्रीन यहाँ रखूं तो इमेज आप स्क्रीन पे नहीं देख सकते. तीसरी चीज डिमिनिश्ड है, छोटी इमेज है. ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा है, इमेज का साइज जो है वो छोटा है, ठीक है? तो इमेज बनी डिमिनिश्ड इमेज. नाउ यूजेज ऑफ स्फेरिकल मिरर्स. नेक्स्ट टॉपिक इज यूजेज ऑफ स्फेरिकल मिरर्स. पहले हम बात करते हैं कनकेव मिरर्स की, ठीक है? कनकेव मिरर्स आर यूज्ड इन टॉर्च, सर्च लाइट, हेडलाइट और व्हीकल टू गेट द पैरेलल बीम ऑफ लाइट. अब देखिए, अगर आप टॉर्च की इस वाली सरफेस को देखें तो दिस इज
कनकेव, मैं ग्लास की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पीछे रिफ्लेक्टिंग सरफेस की बात कर रहा हूं, तो दिस इज कनकेव। सर्च लाइट में भी ऐसे ही होता है। अब आप कभी हेडलाइट को ध्यान से देखें, इस ग्लास को अगर आप छोड़ दें तो पीछे वाली जो सरफेस होती है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, ठीक है ना, एंड दैट इज पैराबोलिक कनकेव, ठीक है। तो कनकेव मिरर्स जो हैं वो टॉर्च में, सर्च लाइट में और हेडलाइट्स में यूज किए जाते हैं। दे आर ऑल्सो यूज्ड इन सेविंग मिरर्स, ठीक है, जो सेविंग करते समय मिरर यूज करते हैं उसमें यूज किया जाता है, ठीक है। दे आर यूज्ड बाय द डेंटिस्ट, आपने देखा होगा डेंटिस्ट जो है मुंह के अंदर जो है इस तरीके का मिरर डालते हैं, क्यों? क्योंकि हमें उसकी इमेज देखनी होती है, ठीक है। ये इमेज बड़ी करके दिखाएगा, जहां तक हम देख नहीं पा रहे हैं उस इमेज को ये दिखाता है, ठीक है ना। तो ये लार्ज इमेज दिखाता है टीथ की, ठीक है। लार्ज कनकेव मिरर्स आर यूज्ड इन सोलर कंसंट्रेटर। आप इस डायग्राम को देखें, ये है सोलर कंसंट्रेटर, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रेज रिफ्लेक्ट होके यहाँ तक पहुंचती है और यहाँ पे हम क्या करते हैं, किसी बर्तन को रख देते हैं। जिस चीज को आपको गर्म करना हो, मान लिया मुझे पानी गर्म करना है, तो मैं यहाँ पे उस बर्तन पे पानी रख दूंगा, ठीक है। तो ये रेज जो है रिफ्लेक्ट होके फोकल पॉइंट की तरफ जाएंगे, तो वो हीट यहाँ पे प्रोड्यूस करती है और जो भी चीज है वो बॉयल होने लगती है। तो सोलर डिवाइसेज में इसको ज्यादातर यूज किया जाता है। अगला है कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर यूज किए जाते हैं एज ए रियर व्यू मिरर्स, ठीक है। ये आप देख रहे हैं रियर व्यू मिरर है। इसकी विशेषता ये है कि इमेज को हमेशा इरेक्ट बनाता है, तो आपके पीछे से जो गाड़ियां आ रही है आपको सीधी यहाँ पे दिखाई देगी। दूसरा जो है वो इसका जो व्यू होता है वो काफी वाइड हो जाता है, यानी काफी ज्यादा बड़ी जगह को आप इस मिरर में देख सकते हैं। इसे कहा जाता है रियर व्यू मिरर। एक तो इमेज सीधी दिखाई देगी, ठीक है, डिमनेस दिखाई देगी और व्यू एरिया बढ़ जाता है इससे, ठीक है, लेकिन लिटरली इन्वर्टेड इमेज बनेगी, ठीक है। अब ये है साइन कन्वेंशंस। इन साइन कन्वेंशंस की हेल्प से आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। पहला, the object is always placed on the left of the mirror and light from object fall from the left to right. ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट में रखा जाना है, ठीक है। जब भी आप कॉपी पे कोई मिरर बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ रहेगा, लेफ्ट में। वो इसलिए रहेगा क्योंकि रे जो है वो लेफ्ट से राइट की तरफ जा सके। अगर आप ऑब्जेक्ट को यहाँ रखेंगे दूसरी तरफ, तो आपको रे को राइट से लेफ्ट की तरफ ले जाना होगा, तो ऑब्जेक्ट को हमेशा हम क्या करेंगे, लेफ्ट में रखेंगे, पहली बात। दूसरी बात, ऑल डिस्टेंसेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। जो भी डिस्टेंस आप मेजर करेंगे वो हमेशा पोल से करेंगे। भाई कोई ना कोई रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए, तो वो रेफरेंस पॉइंट हमारा पोल होता है। मान लिया मुझे इस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी, तो मैं यहाँ से इधर की तरफ चलूंगा, ठीक है। अगर मुझे यहाँ डिस्टेंस कोई मेजर करनी पड़ेगी तो फिर भी पोल से ही चलूं, समझ गए। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है ये, ठीक। नाउ ऑल डिस्टेंसेस मेजर्ड टू द राइट ऑफ द पोल शुड बी टेकन एज पॉजिटिव। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट आने शुरू हो गए। जो भी डिस्टेंस आप इंसिडेंट रे की डायरेक्शन के अपोजिट लेते वो तो आपको नेगेटिव लेने पड़ेंगे, लेकिन अगर आप इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में कोई चीज मेजर कर रहे हैं तो उसे आपको पॉजिटिव लेना पड़ेगा। जैसे मान लिया इमेज जो है वो यहाँ कहीं बनी, ठीक है ना, मान लिया इमेज यहाँ बनी, तो आप डिस्टेंस यहाँ से मेजर करेंगे पोल से। तो इसका मतलब हम चल रहे हैं लेफ्ट से राइट की तरफ और रे भी किधर को जा रही है, लेफ्ट से राइट की तरफ, तो इसे हमें क्या लेना पड़ेगा, पॉजिटिव, ठीक। लेकिन अगर आप लेफ्ट में ले रहे हैं तो उसे क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव लेना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल
इस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस आप पोल से लेंगे तो आप किधर को चल रहे हैं, राइट से लेफ्ट की तरफ, और रे किधर को इंसिडेंट हो रही है, लेफ्ट से राइट, तो इसे मैं नेगेटिव लूंगा, यानी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट मुझे यहाँ पे नेगेटिव लेनी है। अब देखिए इमेज इस केस में यहाँ बनी है, तो इमेज की डिस्टेंस लूंगा तो यहाँ से इधर को चलना पड़ेगा, पोल से इमेज की तरफ, यानी राइट से लेफ्ट की तरफ, तो इसे क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूँ, रे आ रही है लेफ्ट से राइट की तरफ, हम डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं किधर से, राइट से लेफ्ट की तरफ। ठीक है, अगला पॉइंट, ये तब की बात हो रही है जब आप प्रिंसिपल एक्सेस को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, अब अगला पॉइंट, द हाइट मेजर्ड upwards perpendicular to the principal axis should be taken as positive। अगर आप प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं और अपवर्ड डायरेक्शन में चल रहे हैं, जैसे मुझे इसकी हाइट मेजर करनी है, मान ली हाइट इसकी, तो ये पोल से तो करूंगा नहीं क्योंकि हाइट इसकी यहाँ से शुरू होती है, तो अगर मैं प्रिंसिपल एक्सिस के अपवर्ड डायरेक्शन में चलता हूँ तो ये हो जाएगी पॉजिटिव। लेकिन अगर ये ऑब्जेक्ट ऐसा होता है डाउनवर्ड डायरेक्शन, तब मुझे उसे नेगेटिव लेना पड़ता है। जैसे आप इस इमेज की हाइट फाइंड आउट करना चाहते हैं तो भाई डाउनवर्ड डायरेक्शन में चलेंगे, तो हम किधर को चल रहे हैं, प्रिंसिपल एक्सिस से डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो उसे हमें क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव। सिमिलरली मान लिया इमेज यहाँ बनती राइट साइड में और वो इमेज बनती इस तरीके से, ठीक है, मान लिया ऐसे, तो हम इसे क्या लेते हैं, पॉजिटिव, क्योंकि ये डिस्टेंस हम पोल से नहीं ले रहे, हम किधर से ले रहे हैं, प्रिंसिपल एक्सिस से परपेंडिकुलर डायरेक्शन, तो क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में, तो अपवर्ड डायरेक्शन चाहे राइट में हो चाहे लेफ्ट में हो, दोनों में पॉजिटिव लेंगे, और डाउनवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड लेंथ डिस्टेंस, चाहे वो राइट में हो चाहे लेफ्ट में हो, दोनों को ही क्या लेना है, नेगेटिव। लेकिन अगर मैं डिस्टेंस ऑफ दिस इमेज करूं तो मुझे पोल से लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो अगर पोल से लेंगे तो हमें लेफ्ट और राइट देखना है, अगर प्रिंसिपल एक्सिस से देखें तो अपवर्ड और डाउनवर्ड देखना। कुल मिला के मिरर से जो डिस्टेंसेज लेफ्ट में ली जाती है वो नेगेटिव होती है, मिरर के राइट में जो डिस्टेंसेज ली जाती है वो पॉजिटिव होती है, प्रिंसिपल एक्सिस के अपवर्ड डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस ली जाती है वो पॉजिटिव होती है, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे अगर कोई डिस्टेंसेज फाइंड आउट करते हैं, लेंथ फाइंड आउट करते हैं, तो उसे हमें नेगेटिव लेना होता है। तो ये है साइन कन्वेंशन। बिना साइन कन्वेंशन के आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, अब आज के लिए इतने, क्योंकि जब आप ये समझ पाएंगे तब जाके हम मिरर फॉर्मूला आपको बता पाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।